The homework sum check fast. I think 32 was for homework, right? 32 में trial balance of Santosh showed an excess credit. Trial balance में which side was bigger? Credit side was greater. So suspense is sitting on which side? Debit side. Suspense showed a debit balance. Next line पे hint भी दिया हुआ है. You will see that. Now fast rectification with the help of suspense. Purchase of goods of 3,500 from Anupam had been wrongly credited to Nirupama's. What is your correct entry? Purchase to Anupam. Wrong is purchase to Nirupama. Reverse is Nirupama to purchase and rectified is Nirupama to Anupam. Got it? Rectified entry is Nirupama to Anupam. Villa? Second one, amount of 345. अच्छा narration होगा इसका B. Error of commission now rectified. Error of posting between Anupam and Nirupama now rectified. Amount of 345 received from Rupali was wrongly debited to her account as 435. Correct entry था cash to Rupali 345. Wrong entry होगा cash dash to Rupali. Reverse is Rupali to cash to dash and rectified is Rupali to suspense 90 rupees. Amount of 345 receive. अच्छा debit किया sorry. 1 minute. Correct entry था cash to Rupali 345. Wrong आएगा cash Rupali to dash. Cash में 345, Rupali में 435 to dash 70. Reverse is dash to Rupali to cash and rectified is suspense to Rupali 780. Yeah, suspense to Rupali 780. That's your rectified. Suspense to Rupali 780. Add हो जाएगा. बिला? Next one. Proprietor's life insurance was debited to staff insurance. Correct है drawings to bank. Wrong है insurance to bank. Reverse है bank to insurance. Rectified है drawings to insurance. Drawings to insurance is rectified. Drawings to staff insurance. Drawings to insurance. Amount of 440 paid to Sonal in full settlement of her account 500 was recorded on the receipt side of cash book. याद है किया था हमने रिसीट का पेमेंट और पेमेंट का रिसीट. जब रिसीट का पेमेंट और पेमेंट का रिसीट हो जाता है तो एंटायर एंट्री बिकम्स उल्टा. रिसीट का पेमेंट पेमेंट का रिसीट होता है तो एंटायर एंट्री बिकम्स रिवर्स, उल्टा हो जाता है. सो इसका करेक्ट एंट्री क्या होगा? व्हाट इज द करेक्ट एंट्री फॉर दिस? सोनल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीट. Sonal to cash to discount receipt was correct. इसको आपने रिसीट साइड पे डाल दिया, पूरा उल्टा कर दिया. What is the wrong part? सोचो, जब भी आप रिसीट का पेमेंट और पेमेंट का रिसीट करते हो एंटायर एंट्री बिकम्स उल्टा. तो कैश डिस्काउंट अलाउड टू सोनल. दैट्स योर एंट्री. करेक्ट था सोनल टू कैश टू डिस्काउंट रिसीट. सुनो ध्यान से, आपने पेमेंट का क्या कर दिया? रिसीट कर दिया. तो व्हेन यू डू पेमेंट का रिसीट और रिसीट का पेमेंट, इट्स लाइक परचेज बुक का सेल्स बुक एंड सेल्स बुक का परचेज बुक. एंटायर एंट्री विल बी उल्टा. जर्नल का एरर है ना. कैश बुक में आपने लिखना था बाय सोनल, आपने लिख दिया टू सोनल, पूरा एंट्री उल्टा. तो रॉन्ग एंट्री वुड बी कैश डिस्काउंट अलाउड टू सोनल. रिवर्स करो, गेट सोनल to cash to discount allowed and rectified would be, listen carefully, rectified आएगा Sonal to cash to discount allowed to discount receipt. Sonal में अमाउंट आएगा 1000 to cash 880 to discount allowed to discount receipt 66. Is it clear? Got that? Sonal to cash to discount allowed to discount receipt. That's your rectified. What? Suspense tallies? It tallies in this. Credit sale of 400 to Asha was credited to her account in the ledger. Correct था Asha to sales. Wrong है
dash to sales to Asha. Reverse है sales Asha to dash. Rectified है Asha to suspense 800. Asha to suspense 800. Asha to suspense 800. मिला? Asha to suspense 800. Now today we are going to learn NM special. That is NM and BT special again. Your first sum का suspense का balance कितना है? 5384. Debit credit. Opening आएगा. Credit side आ रहा है. Buy balance BD. Buy balance BD आ रहा है. Buy balance BD 5384. वही आएंगे. चलो guys, listen. Your opening balance is 5384. Did you get that? 5384. To buy balance भी opening ही आएगा ना यार. पहले से हम opening balance कहाँ था? जो भी डिफरेंस है वो ओपनिंग बैलेंस आएगा. क्लोजिंग कब आता है? जब ओपनिंग दिया हो और फिर भी टैली ना हो, तब क्लोजिंग आता है. डायरेक्टली अगर ओपनिंग ही नहीं दिया तो पहला लाइन छोड़ देते हो ना, और जो भी डिफरेंस आता है वो ओपनिंग में जाता है. बराबर है. 5384 फर्स्ट सम सस्पेंस अकाउंट. लास्ट में किया था ना, फिर होमवर्क दिया था सस्पेंस, ग्रुप में भी डाला था मैंने. आज अभी कुछ नया कर रहे हैं. एनएमबीटी बाय स्पेशल. It's called rectification before preparation of trial balance. यह एक कंसेप्ट सीए में भी है आपको. सॉरी, प्लीज स्विच ऑन द एसी नाउ. मुझे एक बात बताओ गाइस, सस्पेंस अकाउंट पहली बार दिखता कब है? When do you see the suspense account for the first time? Whenever your trial balance does not tally. Listen now. जब भी आपका ट्रायल बैलेंस टैली नहीं होता है, तभी पहली बार यू लुक एट सस्पेंस. यस और नो? अभी अगर आपको मिस्टेक ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले, ट्रायल बैलेंस जनरली कब बनाया जाता है? एंड ऑफ द ईयर. जनरली एट द एंड ऑफ द ईयर. अदरवाइज व्हेनेवर यू वांट टू मेक यू कैन मेक. तो अगर आपको ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले 12 महीने में कोई मिस्टेक दिख जाए, तो क्या आप उसको तुरंत रेक्टिफाई नहीं करोगे? क्या आप वेट करोगे? नहीं, ट्रायल बैलेंस बनने के बाद ही करेंगे. क्या लगता है आपको, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जैसे मिस्टेक दिखे उसको तो रेक्टिफाई कर लेना चाहिए. वाई टू वेट? आर यू गेटिंग द पॉइंट? So why will a businessman wait if he is finding out an error during the year? Will he still wait till the end of the year? Will he still wait till the end of the year? No. What happened, Dhoni? He is not going to wait till the end of the year, right? He is going to rectify the errors immediately. But the catch is, do you have any suspense account during the year? Suspense account दिखा कब आपको? एंड ऑफ द ईयर. ट्रायल बैलेंस बनने के बाद. तो ड्यूरिंग द ईयर तक तो कोई सस्पेंस नाम की चीज थी ही नहीं. तो जब आपको एरर्स रेक्टिफाई करने हैं और अगर उसमें डैश आ गया, तो दैट डैश कैन नॉट बी कन्वर्टेड टू सस्पेंस. इट्स नॉट पॉसिबल टू कन्वर्ट दैट डैश टू सस्पेंस. व्हाई सो? बिकॉज सस्पेंस अभी तक पैदा हुआ ही नहीं. सस्पेंस पहली बार दिखता कब है? ट्रायल बैलेंस बनने के बाद. So can you use suspense account if you are rectifying the errors during the year? Is it possible? No. You are rectifying the errors during the year. That is, you are rectifying before preparation of trial balance. The key word is before preparation of trial balance. या फिर दिया होगा
बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, बिफोर क्लोजिंग द बुक्स ऑफ अकाउंट्स या बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस अगर आप रेक्टिफाई कर रहे हो तब आप सस्पेंस यूज नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते आप, क्योंकि अभी तक सस्पेंस आया ही नहीं है पिक्चर। तो इन एरर्स को कैसे रेक्टिफाई करना है, along with this sum I'll explain, ड्रॉ कर लो। इन एरर को नोट्स के थ्रू रेक्टिफाई करना है, नोट्स के थ्रू। कल हमने जो फॉर्मेट बनाया था वही फॉर्मेट करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे रॉन्ग, रिवर्स और करेक्ट, और राइट हैंड साइड पे जेपी ड्रॉ करना है जिसमें रेक्टिफाइड एंट्रीज आएगी। In the books of journal proper, rectified. Especially those who are planning to do CA, ये टॉपिक और ये टाइप्स एकदम परफेक्टली कर लो, CA में मजा आएगा। ये नहीं आ रहा है तो CA सजा है। सॉरी, एकदम स्ट्रांगली करना ये टॉपिक्स। PRS है, रेक्टिफिकेशन है, tell me, we are doing now sum number sum number 3, third sum। जो एरर्स में सस्पेंस नहीं है वो तो नॉर्मल है, जिसमें सस्पेंस है वो लफड़े वाला है। पेज 86, सम नंबर 3, पेज 86, ध्यान से देखना सब लोग। पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू रेक्टिफाई द एरर्स बिफोर द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। प्लीज अंडरलाइन दैट फ्रेज, before the preparation of trial balance, page 86, sum number 3. Mila? Underline that please all of you. Before the preparation of trial balance. Now listen. Sales return book was overcast by 500. Sales return book was overcast by 500. पहले तो इसका wrong reverse correct entry होता है। What is the rectified entry? What is the normal balance of sales return? डेबिट। ज्यादा हो गया उसको कम कर, डेबिट को कम करना तो क्रेडिट दो। व्हाट इज द एक्चुअल जर्नल एंट्री? इट इज सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। बोर्ड में देखो सब लोग, इट इज सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न, दैट्स योर एंट्री। बट कैन आई पास दिस एंट्री इफ आई एम रेक्टिफाइंग द एरर्स बिफोर ट्रायल बैलेंस? आई कांट, बिकॉज सस्पेंस नाम की कोई चीज है ही नहीं। बट आई हैव एन एडवांटेज ओवर देयर। व्हाट इज द एडवांटेज? ये अकाउंट खुला पड़ा है, लेजर, सेल्स रिटर्न अकाउंट ओपन है बुक्स में, जर्नल ओपन है, लेजर ओपन है, सारे लेजर्स ओपन है, 12 महीने तक क्लोज नहीं हुआ अभी तक कुछ भी। तो मैं क्या करूंगा, सुनना ध्यान से। ये एंट्री देखो, दिमाग में ये एंट्री फ्रेम कर लो। एंट्री है सस्पेंस टू सेल्स रिटर्न। अब सस्पेंस को उड़ा दो, सेल्स रिटर्न क्या हो रहा है? क्रेडिट हो रहा है। तो आई विल गो टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट। लेट्स से फॉर एग्जांपल दिस इज माय सेल्स रिटर्न अकाउंट। आई विल गो टू द सेल्स रिटर्न अकाउंट and on the credit, because it is getting a credit, so I'll go to its credit side. I'll write here by error of casting. By error of casting, what was the amount? I think it was 5. तो मैंने क्या किया, सेल्स रिटर्न में क्रेडिट कम था, आई मीन डेबिट ज्यादा था, क्रेडिट में एक अमाउंट फिल कर दिया, और बाकी सब पोस्टिंग नॉर्मली जैसे मैं करता हूँ, बाय सन्ड्रीज वगैरह वगैरह वो सब करते ही जा रहा हूँ, टू सन्ड्रीज वगैरह वो सब तो नॉर्मली करते जा रहा हूं। खाली जो मिस्टेक थी उसके लिए मैंने एक और पोस्टिंग कर दी अकाउंट, एक और पोस्टिंग कर दी ऑन द क्रेडिट साइड। व्हाई ऑन द क्रेडिट साइड? रेक्टिफाइड एंट्री में क्या हो रहा है? ये क्रेडिट हो रहा है। सपोज रेक्टिफाइड एंट्री में डेबिट हो रहा होता तो मैं इधर लिख देता, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी मतलब जलता कुछ नहीं, टाइप ऑफ एरर लिख देने का। बाय एरर ऑफ कास्टिंग लिख सकते हो, बाय एरर ऑफ कमीशन लिख सकते हो, बाय एरर ऑफ रॉन्ग टोटलिंग लिख सकते हो, बाय एरर ऑफ रॉन्ग अमाउंट लिख सकते हो, आपकी आप ओन वर्ड्स में लिख सकते हो। खाली साइड पता होना चाहिए। साइड कैसे पता चलेगी? रेक्टिफाइड। तो अब होगा क्या, बुक्स चल रहे हैं और मैंने सेल्स रिटर्न में ये पोस्टिंग कर दी,
अब जब मैं फाइनल बैलेंस लूंगा सेल्स रिटर्न का ईयर एंड पे, तो वो करेक्ट होगा कि रॉन्ग होगा? करेक्ट होगा, क्योंकि जो क्रेडिट में गैप था वो मैंने डाल दिया यहाँ पे रेक्टिफिकेशन करते वक्त. इंस्टेड ऑफ राइटिंग बाय सस्पेंस, व्हाट एम आई राइटिंग? टाइप ऑफ एरर. मेरे को क्या करना है? मेरे को सेल्स रिटर्न को क्रेडिट देना है. अंदर का मसाला कहाँ इंपॉर्टेंट है? सस्पेंस लिखूं कि और कुछ और लिखूं, क्या ही फर्क पड़ता? वन साइडेड एरर, वैसे भी दूसरा कोई अकाउंट तो इफेक्ट होने वाला है नहीं. तो जब भी आप बिफोर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन करते हो, तब सस्पेंस वाला एंट्रीज पास नहीं करना है. सस्पेंस वाले एंट्री के जगह क्या करना है? नोट लिखना है. नोट, वो नोट कुछ ऐसा दिखेगा. आपको ये लेजर वेजर नहीं बनाना है, सब खाली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया. तो ऐसे लिखना है, ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ सेल्स return account. On the credit side of sales return account. Why on the credit side? Because sales return is getting credited. So on the credit side of sales return account, what am I supposed to write? This thing. Inverted columns में लिख देने का by error of casting, by error of totaling, by error of commission, amount is 500. That's it. Instead of using suspense, write this note. That's the only different part. अब ये नोट जर्नल प्रॉपर के अंदर लिखना है कि बाद में लिखना है, आपकी मर्जी. अब जर्नल प्रॉपर के अंदर भी लिख सकते हो, ट्रांजैक्शन वाइज जैसे जा रहे हो, जैसे मैंने लिखा हुआ है, या तो फिर आफ्टर जर्नल प्रॉपर लिख दो तो भी चलेगा. ओके, देन ऑल्सो इट इज फाइन. ये डेबिट क्रेडिट कॉलम खाली रहेंगे, ये एंट्री नहीं है. ये आप नोट यहां पे दिखा लो, एंट्री आप सीधा लेजर में कर दो बाय एरर ऑफ कास्टिंग. टेक वन मोर एग्जांपल विल गेट इट. फैक्ट्री लाइटिंग बिल ऑफ 9,000 पेड बट रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द बुक्स. मुझे बताओ, फैक्ट्री लाइटिंग बिल का करेक्ट एंट्री क्या है? फैक्ट्री लाइटिंग बिल टू कैश या लाइटिंग बिल टू कैश, लाइटिंग एक्सपेंस टू कैश, 9,000. Is that right? Lighting expense to cash, that is 9,000. It was recorded twice in the books. Is it posted twice to lighting? It was recorded twice in the books. तो किसमें twice? दोनों में? ये खाली लाइटिंग में कि खाली कैश? दोनों में. बुक्स मतलब दोनों में, बुक्स मतलब जर्नल, तो दोनों में ही दो बारी हो गया. तो रॉन्ग एंट्री होगी लाइटिंग एक्सपेंस टू कैश, बट व्हाट विल बी द अमाउंट? यस, डबल, 18,000. Now there is no dash over here, so I don't think there would be any suspense. Let's see. Reverse it, you get cash to lighting, and can you cancel out anything? कैश और लाइटिंग दोनों उड़ जाएंगे to an extent of 9,900. So you are left with दोनों जगह 9 and 9 मिला. So I think your rectified entry is cash to lighting. Is there any suspense? So can I write this entry? Yes. कैश में टू लाइटिंग, लाइटिंग में बाय कैश. हो गया. मेरा ट्रायल बैलेंस बनाने से पहले ही पोस्टिंग हो गया. कैश डेबिट में बचा है, लाइटिंग क्रेडिट में बचा है. व्हाट इज माय रेक्टिफाइड एंट्री? कैश टू लाइटिंग. हाँ, फर्स्ट वाले की कोई नरेशंस नहीं लिखने देते या कुछ? नहीं, खाली नोट. वो खाली नोट, नो नरेशन. वो एंट्री है ही नहीं, वो खाली नोट है. इसलिए मैंने बोला ना, ये नोट आप यहाँ पर भी दिखा सकते हो या फिर आफ्टर द जर्नल प्रॉपर भी दिखा सकते हो. ये सिर्फ कॉलेज में पूछ लेना मिठी भाई लोग, आपको है यूनिट टेस्ट में. मिठी भाई पीपल जस्ट कंफर्म. एनएम को तो अभी नहीं है, फाइनल्स में आएगा. अब जो खाली कंफर्म कर लेना. कभी कभी वो लोग बीच में करवाते, कभी जर्नल प्रॉपर के बाद करवाते. तो कहाँ लिखना है वो खाली पूछ लेना. कैश टू लाइटिंग कैन आई राइट दिस एंट्री? यस, बिकॉज देयर इज नो सस्पेंस. तो जो टू साइडेड एरर होता है ना, वो तो नॉर्मली रेक्टिफाई करना. वन साइडेड एरर के लिए नोट लिखना है. इज इट क्लियर? व्हाई आर वी राइटिंग नोट? बिकॉज देयर इज नो सस्पेंस. दिस इज बीइंग
error of commission now rectified. Error of commission now rectified. See the third one. Paid rent to 725 was wrongly posted to rent account as 275. What is the correct entry for paying rent? $725. Rent to cash 725. Wrong is rent dash to cash. Perfect. Got that? Wrong is rent dash to cash. 275, 725 and 450 का gap आ गया. Reverse it, you get cash dash to rent. Either 275, either 725 or either 450. When you cancel out on anything, I think you can cancel your cash. You can also cancel rent to an extent of 275. So you are left with 450 rent on the debit side. टू डैश आएगा वो Dash to rent 2 dash. 2 dash. 2 dash. So what's your rectified entry? It is rent to suspense. But can I write rent to suspense? There is no suspense. So just check what is happening to rent. Rent is getting a debit. So I'll write this note on the debit side. On the debit side of rent account. अभी rent account तो खुला पड़ा है मेरे सामने. I'll go to the ledger. I'll open the rent account, and on the debit side, I'll write the name of the error. Simply the name of the error. So I can write here to error of posting, or I can write to error of commission, or error of wrong amount. कितना है rupees 450. To error of posting करके मैं amount डाल देगा. हो गया. डेबिट देना था रेंट को, डेबिट दे दिया. अब जब मैं फाइनल ट्रायल बैलेंस बनाऊंगा तब सही अमाउंट जाएगा कि गलत? सही. काम हो गया मेरा. तो जब भी आप ड्यूरिंग द ईयर रेक्टिफाई कर रहे हो सीधा अकाउंट्स में फिलअप कर देगा. काम हो गया. समझ में आया? यही लॉजिक. यही आप अगर ट्रायल बैलेंस की बात करते तो टू सस्पेंस लिखते. ये टू सस्पेंस की जगह टू एरर या बाय. अच्छा यहाँ पे क्यों बाय और यहाँ पे कहाँ पे टू क्यों लिखा है? ये क्रेडिट में था, ये डेबिट में. एक्चुअल अकाउंट का देखने डेबिट हो रहा है क्रेडिट. समझ आया? रेंट डेबिट हो रहा है. फोर्थ वाला देखो. टोटल ऑफ सेल्स बुक अंडर कास्ट इज